Now see, this is the greater trochanter, you can see. So greater trochanter, on the upper side it has a pointed or truncated part. Pointed part will be there. So this is the apex of the greater trochanter. So inside these there will be one depression we can see. So this is known as the trochanteric fossa. This is known as the trochanteric fossa. And the very important thing is there, if you see here, if you see on the head, at the middle of the head we can see one depression. See this? So this depression is known as the fovea. This is known as the fovea. Now coming to the shaft. So the shaft is more like cylindrical. Okay, more cylindrical है, दिख रहा है. Anteriorly it is convex forward, and on the lower end you can see the shaft is expanded. ठीक है, lower end में ये थोड़ा expanded है. So in the middle one third, the shaft has three border. Okay, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर. मिडिल वन थर्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे थ्री बॉर्डर है. ये है मीडियल बॉर्डर. मीडियल वन थर्ड में अगर देखेंगे ये है लेटरल बॉर्डर, एंड पोस्टीरियर वन इज़ वेरी प्रोमिनेंट. पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है. नाउ दिस पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज from here to here, this is known as the linea aspera. Then this linea aspera, it is bifurcate to form one surface on the lower end of the femur. So this line, this is known as the linea aspera. ठीक है, इसको हम लोग लीनिया एस्पेरा बोलते हैं. दिस लीनिया एस्पेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मस्कुलर अटैचमेंट. Okay. See, sorry, I'm telling about the surfaces. There will be three surface: medial, lateral and posterior surface. So but border कैसे divide होगा? See, on the medial side there will be this is the anterior border. This one will be your anterior border. On the medial one third, see only the medial one third, middle one third. Sorry, middle one third. This is the anterior border. ठीक है. Now this one will be your posterior border. Posterior border. Wait for a minute. Posterior border. So anterior surface, anterior surface, this is the medial surface, this one will be your posterior surface. Okay, see, there will be the medial border, lateral border and posterior border. Posterior border को हम लोग लीनिया एस्पेरा बोलते हैं. So it divide the middle one third into three surfaces. These three border, medial, lateral and posterior border, divide this middle one third into three surfaces. तो क्या क्या हो गया? See, ये अगर medial हुआ, ये lateral हुआ, so there will be the anterior surface. ठीक है. So in between the medial and the posterior border, this is the medial surface, and between the lateral and the posterior border, this is the lateral surface. Okay, anterior, medial and lateral surface. But border क्या है? Lateral border, medial border, lateral border and posterior border. Posterior border is a part of a linea aspera. ठीक है. I am telling about the middle one third. Now coming to the upper one third of the shaft, it has upper one third में आपको दिखेगा, it has two lips of the linea aspera.
दिख रहा है? हाँ, okay. See, this is the linea aspera. So we can see here 2 leaves of the linea aspera. This is one and this one will be another. These 2 leaves joined together at the middle of this shaft. We can see the clear posterior border. एक सेकेंड, हाँ देखो, अपर एंड में 2 लीप आ रहा है लीनिया एस्पेरा का, फिर ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है. सो दस इट हैज़ 4 बॉर्डर्स, ठीक है, मीडियल, लैटरल, स्पाइरल लाइन एंड द लैटरल लिप ऑफ द, ये देखो ये जो अनदर लिप है, सी दिस इज लुकिंग लाइक द स्पाइरल लाइन, ठीक है, स्पाइरल लाइन. So this is known as the, and it's like a ridge, see, it's like a ridge. So this is known as the gluteal tuberosity. Gluteal tuberosity, ये ridge जो स्पाइरल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे gluteal tuberosity, ठीक है. सो ये जो 2 लिप है ये अपर 1/3 को ये 4 सरफेस में डिवाइड करता है. 4 बॉर्डर 4 सरफेस, ओनली यू हैव टू नो दिस थिंग. Okay, now coming to the, excuse me, lower end of the shaft. So lower end, if you see on the posterior aspect, again the linea aspera will give 2 lips here. ये see देखो, ये linea aspera यहाँ आके भी 2 लिप में डिवाइड हो रहा है. एक लेटरल कॉन्डाइल की तरफ जा रहे हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल की तरफ जा रहे हैं. Okay, and there will be the triangular surface we can see here. Okay, so it will again it will form also the 4 surfaces on the lower end, ठीक है, and this triangular surface it is known as the popliteal surface. This is known as the popliteal surface. Okay, now coming to the lower end. ओके, लोअर एंड में हम लोग क्या देखेंगे, 2 कॉन्डाइल्स आर देयर एंड दिस इज़ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया. ये है इंटरकॉन्डाइलर एरिया एंड देयर विल बी ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट देयर विल बी 1 डिप्रेशन. दिस इज़ इंटरकॉन्डाइलर फोसा बोलते हैं इसको, इंटरकॉन्डाइलर फोसा. सो ये है, सी ये मीडियल साइड है बिकॉज द हेड विल बी ऑन द मीडियल साइड. सो दिस इज़ मीडियल कॉन्डाइल और ये है लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल, इंटरकॉन्डाइलर एरिया एंड पोस्टीरियरली द डिप्रेशन इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर फोसा. ओके, वन मोर थिंग इज देयर, इफ यू सी द medial condyle. Medial condyle, you can see here some elevated pointed part also will be there. So this is known as the medial epicondyle. medial epicondyle. Okay, medial epicondyle इसको बोलते हैं. Now posterior superior to the condyle. posterior superior means ये है मेन एनाटॉमिकल पोजीशन. ओके, ये है मेन एनाटॉमिकल पोजीशन. ये हो गया मेडियल एपिकॉन्डाइल. द पोस्टेरो सुपीरियर, दिस पार्ट पोस्टेरो सुपीरियर, हियर विल बी अनदर ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर you can see. So this is known as the adductor tubercle. So this adductor tubercle on the medial condyle, this is also an important structure for the muscular attachment. ठीक है. So now coming to the लेटरल कॉन्डाइल. सो लेटरल कॉन्डाइल में भी ऐसे प्रोमिनेंट एक पार्ट देखेंगे ट्यूबरकल जैसा, उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल एपिकॉन्डाइल. ठीक है. सो लेटरल एपिकॉन्डाइल के नीचे देयर विल बी वन ग्रूव. सो दिस इज नोन एज द पॉप्लीटियल ग्रूव. पॉप्लीटियल ग्रूव जस्ट बिलो द, क्या बोलते हैं इसको, एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, उसके नीचे एक पॉप्लीटियल ग्रूव है. ओके. सो मस्कुलर इम्प्रेशन ऑफ द पोस्टेरो सुपीरियर. ये पोस्टेरो सुपीरियर देखना, कॉन्डाइल के जस्ट पोस्टेरियर एंड लिटिल अपर पार्ट में पोस्टेरो सुपीरियर में और एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे. सो दिस इज़ फॉर द मस्कुलर इम्प्रेशन. ओके, दिस इज़ फॉर द मस्कुलर इम्प्रेशन. सो दीज आर द इंटरकॉन्डाइलर फोसा और नॉच तो मैंने बता दिया. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट external features we can see in the femur. So you all have understood
ठीक है, अपर एंड लोअर एंड शाफ्ट एंड व्हाट आर द अदर इम्पॉर्टेंट structure present here. Now little about the muscular attachment. So the fovea, this is the fovea on the head. So fovea provides the attachment of the ligament. As you know, this is head of the femur. लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर भी बोल सकते हो, इसको राउंड लिगामेंट भी बोल सकते हो, लिगामेंटम टिडिस भी बोल सकते हो, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द greater trochanter. So you can see here the apex of the greater trochanter. Here will be the insertion of the piriformis. Piriformis will be inserted on the apex of the greater trochanter. Then gluteus minimus is inserted into the rough lateral part. रफ लेटरल पार्ट, यहाँ पे रफ लिटिल लेटरल पार्ट है इस साइड ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के. सो ये रफ लेटरल पार्ट में यहाँ पे होता है ग्लूटियस मिनिमस, इंसर्शन है, इसका भी इंसर्शन है. देन ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड 2 जेमिलाई इंसर्टेड ऑन द रफ अपर रफ इम्प्रेशन ऑन द मीडियल सरफेस. ये हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर का मीडियल सरफेस, मतलब इनसाइड इस जगह में जहाँ पे मैंने बोला था ट्रोकेंटरिक फॉसा है, ठीक है. ये है ट्रोकेंटरिक फॉसा. तो ये मीडियल सरफेस यहाँ पे क्या होता है, 2 जेमिलियाई विद द ऑब्टूरेटर इंटरनस, 2 जेमिलियाई विद द ऑब्टूरेटर इंटरनस. मीडियली ये इस तरफ भी आ जाता है, हाँ, 2 जेमिलियाई एंड द ऑब्टूरेटर इंटरनस. देन एपेक्स में पायरिफॉर्मिक्स, देन रफ लेटरल पार्ट में ग्लूटियस मिनिमस and gluteus medius inserted into the ridge on the lateral surface. ये lateral surface में भी इसका एक ridge like structure है lateral surface में. So यहाँ पे होता है gluteus medius, यहाँ पे gluteus medius का insertion ही है, ठीक है. मैं मेन मस्कुलर अटैचमेंट बस बता दे रही हूँ. नाउ लेसर ट्रोकेंटर में हम लोग देखेंगे ऊपर में अपर साइड में स्वास मेजर, देन नीचे में होगा इलियाकस, स्वास मेजर एंड इलियाकस, ठीक है. लेसर ट्रोकेंटर में बस ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग I'll tell. Now इंट्राट्रोकेंटरिक लाइन मैंने बोला था एंटीरियरली होगा इंटरट्रोकेंटरिक लाइन. सो इंटरट्रोकेंटरिक लाइन में होगा पहले कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट, फिर इलियोफेमोरल लिगामेंट का अपर लोअर बैंड दोनों ही है ये इंटरट्रोकेंटरिक लाइन से. और ओरिजिन ऑफ द हाइस मतलब फाइबर्स ऑफ वास्टस लेटरलिस. ओके, ये जो इंटरट्रोकेंटरिक लाइन है यहाँ से वास्टस लेटरलिस का फाइबर्स आता है. वास्टस लेटरलिस यहाँ से लेके फिर इस तरफ आते हैं, यहाँ से ऐसे करके पीछे मतलब लेटरल साइड में आता है वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस फ्रॉम द लोअर एंड. ये जो इंटरट्रोकेंटरिक लाइन है ये एक सेकेंड, हाँ, ये अपर पार्ट से वास्टस लेटरलिस एंड लोअर पार्ट से वास्टस मीडियलिस. सो वास्टस मीडियलिस ऐसे करके मीडियल साइड में आ जाएगा, मीडियल साइड में, ठीक है. एंड वास्टस लेटरलिस ऐसे करके लेटरल साइड में आ जाएगा, अपर एंड से लेटरल, लोअर एंड से मीडियल. सो वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस इंट्राट्रोकेंटरिक लाइन से. नाउ कमिंग टू द क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहाँ पे था, ये इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में था उसके मिडल में लिटिल, हाँ, you can say at the middle of the intertrochanteric crest. So this is the quadrate tubercle. So here will be, it receives fibers of quadratus femoris, ठीक है. क्वाड्रेट ट्यूबरकल में क्वाड्रेटस फीमोरिस, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रेट ट्यूबरकल है. नाउ कमिंग टू द शाफ्ट.
शाफ्ट में मेनली पोस्टीरियर पहले बताओ कि एंटीरियर पहले बताओ? अच्छा, मेनली यहाँ पे जो है एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस अपर 3/4 से, मतलब एंटीरियर, ये एंटीरियर सरफेस हो गया, ये हाँ ये पूरे एंटीरियर सरफेस हो गया और ये लेटरल सरफेस हो गया। सो अपर 3/4 पूरे इस पार्ट में होता है वास्टस इंटरमीडियस। वास्टस इंटरमीडियस आप लोग डिसेक्शन में भी देखोगे। सो डिसेक्शन में भी देखोगे, इस साइड से हो गया वास्टस मीडियलिस, इस साइड से हो गया वास्टस लेटरलिस, पूरे यहाँ पे रहेगा वास्टस इंटरमीडियस। ठीक है, वास्टस इंटरमीडियस होगा। नाउ कमिंग टू द दिस सरफेस। ओके, यहाँ पे मेनली है ये जो है लीनिया एस्पेरा एंड देयर विल बी द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। मैंने बोला था ये लिप्स जो स्पाइरल लाइन जा रहा है, सो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी में देयर विल बी इंसर्शन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मीडियस मिनिमस हो गया था ग्रेटर ट्रोकेंटर में, तो ये हो गया इंसर्शन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पोप्लिटियल सरफेस। पोप्लिटियल सरफेस में पोप्लिटियस मसल, पोप्लिटियल फॉसा में भी आप लोग देखोगे, इसमें पूरे पोप्लिटियस मसल होता है। अब इस तरफ आ जाओ, वास्टस मीडियस इंटरमीडियस कहाँ रहता है? अपर 3/4 पार्ट में रहता है। अब अपर 3/4 पार्ट लाइक इतना तक रहेगा। ठीक है, तो नीचे में जस्ट बिलो 5 सेंटीमीटर बिलो ऑन द एंटीरियर सरफेस, यहाँ से होगा एक स्मॉल मसल्स विल बी देयर दैट इज नोन एज द आर्टिकुलरिस जेन्यू। यहाँ से आर्टिकुलरिस जेन्यू 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बिलो the vastus intermedius, the attachment of vastus intermedius. So there will be the articularis genu. Now coming to the linea aspera. So linea aspera में I am telling from मीडियल टू लैटरल बताओ कि लैटरल टू मीडियल बताओ? एक सेकेंड। लीनिया एस्पेरा में बहुत सारा अटैचमेंट है जिसका न्यूमोनिक्स है आई लव बी, मिस्टर बी लव्स मी। आई लव बी, मिस्टर बी लव्स मी। सो फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। ठीक है, दिखा रही हूँ मैं। Okay, from lateral to medial side, see this is the linea aspera. So ये मैंने क्या बोला था, अपर 3/4 में वास्टस इंटरमीडियस होता है। सो फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड ये जो लीनिया एस्पेरा है, यहाँ पे सारे मसल के फाइबर्स बहुत फाइनली आके यहाँ पे जुड़ते हैं लीनिया एस्पेरा में। सो आई लव बी, मिस्टर बी लव्स मी। सो आई स्टैंड फॉर फर्स्ट वास्टस इंटरमीडियस। फिर यहाँ से वास्टस लेटरलिस का टेंडन आएगा, तो आई लव मीन्स वास्टस लेटरलिस। आई हो गया वास्टस इंटरमीडियस, देन वास्टस लेटरलिस। आई लव बी, अब बी हियर आई थिंक लॉन्ग हेयर ऑफ बाइसेप फेमोरिस। ठीक है, आई लव बी हो गया बाइसेप फेमोरिस।
मिस्टर मीन्स एडेक्टर मैग्नस, ठीक है, एडेक्टर मैग्नस। फिर मिस्टर बी, अगेन बी, तो एडेक्टर ब्रेविस। मिस्टर बी लव्स मीन्स, अब यहाँ पे आएगा वास्टस लेटरलिस, सॉरी लव फॉर एडेक्टर लॉन्गस, वास्टस लेटरलिस तो इस तरफ हो गया, एडेक्टर लॉन्गस, ठीक है। मिस्टर बी लव्स लास्टली मी मीन्स मीडियल साइड में मोस्ट मीडियली होगा वास्टस मीडियलिस, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट, on the linea aspera, very delicately, finely, all the fibers, or you can say all the tendon or fibers of these muscles will be attached here on the linea aspera. From lateral to medial side, I love B, Mr. B loves me. So I stands for vastus intermedius, I love stands for vastus lateralis, I love B stands for bicep femoris, then Mr. stands for adductor magnus, Mr. B means adductor brevis, Mr. B loves means यहाँ पे आएगा adductor longus, me means vastus medialis. So this will be the structure or attachment we can see on the linea aspera. Now मैं इम्पॉर्टेंट मसल यही बता रही हूँ, मसल अटैचमेंट ही बता रही हूँ। नाउ ठीक है, आर्टिकुलरिस जेन्यू भी हो गया। ओके, एडेक्टर ट्यूबरकल प्रेजेंट ऑन द मीडियल एपिकॉन्डाइल। सो मीडियल एपिकॉन्डाइल में ये एडेक्टर ट्यूबरकल में होता है आपका क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ द एडेक्टर ischial head of adductor magnus, ठीक है, ischial head of adductor magnus, यही एडेक्टर ट्यूबरकल के, इसीलिए इसको एडेक्टर ट्यूबरकल बोलते हैं। सो ऑन द एडेक्टर ट्यूबरकल देयर विल बी इंसर्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग पार्ट और ischial हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा, पोप्लिटियस इज अराइजिंग फ्रॉम दिस ग्रूव, ये जो ग्रूव दिख रहा है लैटरल एपिकॉन्डाइल के नीचे, यहाँ पे पोप्लिटियस का टेंडन होता है, पोप्लिटियस का टेंडन है। एंड ये मस्कुलर इम्प्रेशन जो दिख रहा है यहाँ पे, मस्कुलर इम्प्रेशन, एक सेकेंड, ये दिखेगा कि नहीं पता नहीं, मैं दिखा रही हूँ। ओके, ये है आपका लैटरल एपिकॉन्डाइल, इसके नीचे ये पोप्लिटियस का टेंडन, ये ग्रूव पोप्लिटियल ग्रूव, और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर सुपीरियरली ये जो गड्ढा दिख रहा है, दिस इज़ फॉर द मस्कुलर इम्प्रेशन। सो ये इसमें होता है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस, वो जो मस्कुलर इम्प्रेशन है दिस इज़ फॉर द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, ठीक है, यही मेन थिंग है। बाकी तो फिबुला कोलैटरल लिगामेंट, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट लेटरली मीडियली रहेगा ही। और इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे इंटरट्रोकेंटरिक लाइन और इंटरट्रोकेंटरिक फॉसा में, मतलब ये इंटरट्रोकेंटरिक एरिया और ये फॉसा में बहुत सारे, जैसे कि आपका क्रूशिएट लिगामेंट रहता है, ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट रहता है, साइनोवियल फोल्ड रहता है वहाँ पे, पेटलर इंफ्रापेटलर बर्सा का। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन सी हियर, बट द मेन जो अटैचमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। Hope you all have understood after seeing this. If there is any doubt, you can ask on your group or you can call me also. Thank you.